Today's topic, organisms of conservation concern. Especially we will discuss about endangered species. Okay, so reasons why the species are getting endangered is main land clearing for you can say housing, for other reasons land is getting cleared, farming and competition by the predators. These are the reasons why some of the species they are getting endangered. Now, data is mentioned that more than 30,000 species of plants and animals are currently in danger or becoming at risk of extinct due to the human activities. Okay, and it will affect definitely the food web. So, what are extinct species? You all know that extinct species that they no more exist. They are now no more in existence in their particular habitat or area. Okay, sometimes it happens that species they move from one place to another, but if the species it is not found in a particular local area or a particular region or country or on the earth entirely, then it is termed as extinct species. Examples like Asiatic cheetah, pink head duck and golden toad, these are the extinct species. What are endangered species or endangered animal? Okay, the animal which is on the verge of extinct, that means वो खत्म होने वाला है. अगर अब उसे कंजर्व नहीं किया गया then it will extinct very soon. That are you can say endangered species or endangered animal. Okay, so endangered animal or endangered species is population of organism which is at high risk of becoming extinct due to its few numbers, or it is also in danger due to our changing environment or human activities or due to predators. मतलब वो खत्म होने की तैयारी में है, उसे हम बोलेंगे endangered species. जो खत्म हो चुका है, exist नहीं करता, उसे हम बोलेंगे extinct species. Okay, pollutants and other human activities, they are the reason in the habitat for the endangerment of such animals or such species. Okay, factors, reasons क्या है कि ये जो animals और species है they are in danger. The reason is overpopulation, human overpopulation, habitat destruction, human activities they destroy the habitat of the animals, then introduction of अदर स्पीसीज जो उस हैबिटेट में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे स्पीसीज के लिए हम उसे उस ऐसे स्पीसीज के लिए हम जगह बनाते हैं हैबिटेट में सो दैट इट कैन एग्जिस्ट. सो न्यू स्पीसीज अगर हम लोकल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो चांसेस है कि कुछ वहां जो रहते एनिमल्स और स्पीसीज हैं दे कैन बी इन डेंजर. ग्लोबल वार्मिंग, limited destruction and damage from extreme climate events. Definitely climate changes, they are affecting each and every species. Global aggregate impacts, that is overall impact, pollution and disease. These are the reasons why the species are in danger. डेटा है इंडिया में क्या कंडीशन है एंडेंजर्ड स्पीसीज की. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिकॉर्ड्स देयर आर ओवर 1,30,000 endangered animal species, only animal species, and this data accounts for around 8.86% of world mammals. Okay, वर्ल्ड मैमल्स जो है 100% में से नियर अबाउट 9% मैमल्स जो है इंडिया में ही नियर टू डेंजर है. दे कैन बी you can say extinct in near future. Mammals, their data is given that there are 186 genera of mammals, 45 families and 13 orders, जिसमें से around 89 species they are in danger as per the IUCN Red List of Threatened Animals. 2006 का डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग 89 species animals की और स्पेशली mammals की they are in danger. Now some of the examples of endangered species. So first is Royal Bengal tiger. Okay, that is the classification. इनकी current population जो है data है current population 1706 to 1909. That is around 2000 you can say, that is the current number of Bengal tigers and that is the classification. You don't have to remember the classification, just remember the scientific name.
ओके, व्हाइट बंगाल टाइगर और बंगाल टाइगर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे. बंगाल टाइगर साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, मोस्ट न्यूमरस टाइगर सबस्पीशीज है ये, एंड इट इज मोस्ट न्यूमरस. इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका नंबर जब कम हो गया, दैट इज यू कैन से नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, एंड इट्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड अराउंड 2000 इन इंडिया. बंगाल जो है इसका लोकल हैबिटेट है. So it is mentioned that Bengal is traditionally fixed typical locality for binomial Panthera tigris. But since 2010 it is कब से इसे endangered species में डिक्लेयर किया है? 2010 से Bengal tiger they are classified as endangered species by IUCN. Okay, total population will be definitely population mentioned किया around 2000, so it is less than 2500, and none of the tiger conservation landscapes within Bengal tigers range is enough for its population. Ultimately it is mentioned कि जितना उसका नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसे एरिया ही मिल रहा है वहां सर्वाइव करने के लिए. ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका कलर कैसा है. लाइक कलर इज, उसका कलर कोट जो है बॉडी कलर येलो टू लाइट ऑरेंज विथ स्ट्रिप्स रेंजिंग फ्रॉम डार्क ब्राउन टू ब्लैक. आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर सकते हैं. इंटीरियर पार्ट ऑफ लिम्स दे आर व्हाइट एंड टेल इज ऑरेंज. व्हाइट टाइगर का नहीं, यू कैन से लाइट टू ऑरेंज, येलो टू लाइट ऑरेंज टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Parts of the limbs are white and tail is orange with black rings. अब मेल टाइगर की लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ, एवरेज लेंथ दैट इज 270 to 310 सेंटीमीटर, काउंटिंग द टेल. ओके, फ्रॉम हेड टू टेल लेंथ दिया है. फीमेल्स दे आर 240 to 265 सेंटीमीटर. Tail length that is typically on an average 85 to 110 centimeter, and tigers their height tigers are 90 to 110 centimeter height at the shoulders. कुछ डेटा है. Remember the weight of the males is 221.2 and that of females 139.7 kg. Next is very common animal, that is house sparrow. Okay, house sparrow, that is also in endangered category. So that is the classification. Current population is less than 23%. Okay, female sparrow in India and male sparrow. उसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है पैसर डोमेस्टिकस. स्पैरो फैमिली की बर्ड है. मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यू कैन से फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसकी लेंथ, स्मॉल बर्ड है, उसकी लेंथ कितनी है? यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 16 सेंटीमीटर एंड वेट इज अराउंड 24 to 39.5 ग्राम. अप्रोक्सीमेटली यू कैन से लेस देन 50 ग्राम्स. फीमेल एंड यंग बर्ड्स, उसका कलर है पेल ब्राउन एंड ग्रे, एंड मेल्स दे आर ब्लैक, ब्राइटर और ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन मार्किंग्स मेल बॉडी पे मिलेगा. वन ऑफ अबाउट 25 स्पीसीज इन द जीनस पैसर, जो इसका जीनस है हाउस स्पैरो का, दे आर मोस्टली और नेचुरली दे अकर, जो जीनस पैसर है that is mostly or commonly found in India, most of the part of India and even much of the part of Asia. 25 species है ये जो जीनस है पैसर, उसमें 25 species है, जिसकी एक species commonly domesticus commonly India में you can found commonly in India. Okay, कुछ characteristics picture में बताई गई हैं. Male, female and you can say juvenile young bird or young animal. Characteristics: it is compact bird, about 16 centimeter long, approximate length 14 to 18 centimeter, large round head. Culmen length है इसकी 1.1 to 1.5 centimeter. Okay, part you can say head part. Short tail 5.2 to 6.5 centimeter long. Chord of the animal 6.7 to 8.9 and you can say सारे डेटा याद नहीं रखना है, खाली आप बर्ड की लेंथ याद रखिए. एवरेज लेंथ कितनी है, ये जस्ट डेटा है, कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, वेट, यस, रिमेंबर द वेट रेंजेस फ्रॉम लेस देन 50 ग्राम.
around 40 grams. Younger birds, they are smaller. Males, they are larger during winter. एंड फीमेल्स आर लार्जर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है. बाकी डेटा है जो आपको खाली लेंथ और वेट में याद रखना. यंगर बर्ड्स आर स्मॉलर एंड मेल्स आर लार्जर इन विंटर. फीमेल्स आर लार्जर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. बिटवीन एंड विद इन सब स्पीशीज देयर इज फर्दर वेरिएशन. ओके, सब स्पीशीज में आप हाइट, वेट, लेंथ ऑफ द कुलमेन, अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएशन देख सकते हैं. So second animal, or you can say bird, was house sparrow. Third is elephant, Asian elephant. They are also in endangered category. Scientific name Elephas maximus. Population, what is the population? 41,410 to 52,345. Number. Scientific classification, male tusker in the, this is the photo or picture is of male tusker in the wild, in India, and baby elephant that and his mother. Asiatic elephant, और उसका scientific name है Elephas maximus, is the only living species of genus Elephas and is distributed in India. Elephas genus में ये एक ही species है maximus जो living है at present India में. Only species. Asian elephants are the largest living land animals in Asia. Okay, Asia में largest animal है ये. Since 1986, Elephas maximus को endangered category में include किया गया. Since 1986, as because उसकी population 50% decline हो गई. 50% there was reduction in its population. 2012 में उसके नंबर्स जो काउंट एस्टिमेट किए गए नियरली 41,000 टू 52,000. एशियन एलिफेंट्स, दे आर लॉन्ग लिव्ड. इसकी लाइफ स्पेन ज्यादा होती है. कितनी? 86 years. लाइफ स्पेन ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स इज 86 years. दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड these elephants, they are in domestic use also. In South India it is used for timber carrying and transportation. Okay, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं just for information. ये दूसरे एलिफेंट्स हैं. बोर्नियो एलिफेंट, दे आर स्मॉलर देन एशियाटिक एलिफेंट सब स्पीशीज, स्मॉलर देन अदर एशियन एलिफेंट सब स्पीशीज. इनकी साइज जो है एशियाटिक एलिफेंट्स से कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है. एंड दे हैव रिलेटिवली लार्ज ईयर्स, लॉन्ग टेल एंड स्ट्रेट टस्क. एशियाटिक एलिफेंट्स is smaller than African elephant. In short, सबसे बड़ा African elephant है, उसके बाद Asiatic elephant, उसके बाद Borneo elephant. And has the highest body point on the head. Asiatic elephant के body पे highest body point on the head. Head उसका थोड़ा pointed, highest pointed देखने को मिलेगा. Back उसका convex और level में हो सकता है, that is straight. Ears small with dorsal borders folded. Ears जो है end पे उसके border जो है folded हो सकते हैं. Okay, 20 pairs of ribs and 34 vertebrae present हो सकती हैं. The feet have more nail-like structure. Feet में nail-like structure देखने को मिल सकता है. African elephants में ये absent होता है. 5 on each forefoot. Okay, हर एक फुट में 5 नेल्स देखने को मिल सकते हैं. एंड 4 ऑन ईच हिंड फुट. ओके, हिंड फुट में और 4 फुट में नेल्स प्रेजेंट होते हैं एशियाटिक एलिफेंट्स में. अफ्रीकन एलिफेंट्स में ये एब्सेंट होते हैं नेल्स. नेक्स्ट एंडेंजर्ड एनिमल, दैट इज पांडा. ओके, साइंटिफिक नेम इज एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूसा. इसकी पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन 1590. इमेजेस, जायंट पैंडा एंड पैंडास ईटिंग बाम्बू. पैंडास का मेन फूड जो होता है वो होता है बाम्बू. 90% ये बाम्बू कंज्यूम करते हैं, और यू कैन से अप टू 99%. दे आर ऑल्सो यू कैन से कार्निवोरस. पैंडास कार्निवोरस भी होते हैं, बट उसका मेन फूड होता है बाम्बू. Panda, scientific name Eleuropoda melanoleusa. It is also known as giant panda. Okay,
to distinguish it from red panda. It is a bear. Red panda भी आता है पर वो bear है. And this white and black जो हम देखते हैं that is panda. Okay, red panda is native to Asia. It is easily recognized by the large distinctive black patches. Definitely ये उसका आइडेंटिफिकेशन है. आप इमेज देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैंडा और बियर में क्या डिफरेंस है. बियर में डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे बट पैंडा का स्पेशल ये कलर है. ओके, ब्लैक आईज, ब्लैक ईयर्स, व्हाइट हेड, उसके बाद ब्लैक पोर्शन, देन अगेन व्हाइट. सो डेफिनेटली हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ब्लैक पैचेस अराउंड इट्स आईज, ओवर द ईयर्स एंड अक्रॉस इट्स बॉडी, राउंड बॉडी. इट बिलोंग्स टू कार्निवोरा. पैंडा कार्निवोरस है बट 99% उसकी डाइट क्या होती है? बैम्बू. पैंडास इन द वाइल्ड ओकेशनली नॉर्मली ये ग्रास खाते हैं, वाइल्ड ट्यूबर्स, but if meat is available they also go for it, like in the form of birds, rodents or carrion. That is their food. In captivity, जब हम उसे कैप्चर करके रखते हैं, they receive honey, eggs, fish, yams, shrub leaves, oranges or bananas. That is both foods that is favorable for it. Okay, कुछ characteristics हैं just for information. You can read a few of the characteristics. सब याद रखने की जरूरत नहीं है. मेन उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसका बॉडी कलर, सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम द बियर. ओके, जायंट पैंडा एंडेंजर्ड जो है दैट इज जायंट पैंडा. जायंट पैंडा, अ ब्लैक एंड व्हाइट बियर, हैज अ बॉडी लाइक बियर. बियर जैसी बॉडी है. इट हैज ब्लैक फर ऑन ईयर्स. उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो आगे इस इमेज में है वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है. ब्लैक फर ऑन द ईयर्स, आई पैचेस हैं ब्लैक कलर, मसल्स, लेग्स एंड शोल्डर्स उसके बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं. रेस्ट ऑफ एनिमल, जो ब्लैक पार्ट है वो बताया गया कि ब्लैक कौन कौन सा है. बाकी एनिमल बॉडी और एनिमल कोट दैट इज व्हाइट. Although scientists they are not aware why these unusual bears, they are also termed as unusual bears, are black and white. Some of the scientists they speculate that bold coloring provides effective camouflage. Okay, camouflage is one of the, you can say, benefit they get from their body into their shade dappled snowy and rocky surroundings. स्नो एरिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे. सो उसका बॉडी जो है कलर इट हेल्प्स इन कैमोफ्लेज. पांडास थिक वूली कोट कीप्स इट वार्म इन द कूल फॉरेस्ट ऑफ इट्स हैबिटेट. कोल्ड रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे. मोस्टली उसका हैबिटेट वही है, कोल्ड रीजन. सो उसका बॉडी जो फर है इट प्रोवाइड्स इट वार्मथ एंड इट कैन सर्वाइव लाइक बियर. बियर भी वही है, पोलर बियर हम देखेंगे उसके बॉडी की वजह से वो ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है. जायंट पैंडास हैव लार्ज मोलार टीथ. मोलार टीथ उसे चाहिए क्योंकि उसे बैम्बू खाना है. सो मोलार टीथ उसके लार्ज होंगे एंड स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स फॉर क्रशिंग टफ बैम्बू. नेक्स्ट एनिमल इज पैंथर, फ्लोरिडा पैंथर. साइंटिफिक नेम प्यूमा कॉर्न कलर. करंट इसकी पॉपुलेशन है 100 to 160. एंडेंजर्ड एनिमल्स में पिक्चर्स बताई गई हैं मैजेस्टिक फ्लोरिडा पैंथर एंड ब्लैक पैंथर की. ओके, फ्लोरिडा पैंथर is endangered subspecies. You can see the scientific name genus Puma concolor. So concolor that is you can say species. उसकी अंदर सब स्पीसीज है. कौन सी सब स्पीसीज? कुगार मेंशन किया. फ्लोरिडा पैंथर एंडेंजर्ड सब स्पीसीज है. सब स्पीसीज कौन सी? कुगार सब स्पीसीज में ये फ्लोरिडा पैंथर आता है और दैट इज एंडेंजर्ड. दिस स्पीसीज इज आल्सो नोन एज कुगार. इस स्पीसीज को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? कुगार, माउंटेन लायन, प्यूमा एंड कैटामाउंट. कैरेक्टरिस्टिक दिया है मेल्स कैन हैव weight up to 160 pounds and live within a range that includes Big Cypress National Preserve,
ओके, कहाँ कहाँ नॉर्मली सब के सब कंजर्व्ड एरिया में ही है, लाइक नेशनल पार्क, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, फ्लोरिडा पैंथर नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज, बिकॉज इसके नंबर्स नियर अबाउट 100 to 150 हैं, तो डेफिनेटली उसे कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पॉपुलेशन द ओनली unequivocal cougar representative in the eastern United States currently occupies 5% of its historic range. इसकी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 5% तो यूएस में है. In the 1970 Florida 20 Florida panthers in the wild, their number increased to 100 to 160 in 2011. ओके, 1970 में ही ये एक्सटिंक्ट हो जाते, पर उसको कंजर्व करके उसके नंबर्स 150 तक पहुंचे हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है फ्लोरिडा पैंथर. वेट 130, 280, हाइट एलबीएस में है. ओके, बैक ऑफ ईयर्स ब्लैक. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको कुछ याद रखना है तो याद रखना. टोटल लेंथ 7 to 8 फीट. पिक्चर्स में शॉर्टकट दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, फ्लोरिडा पैंथर्स आर स्पॉटेड एट बर्थ. एट बर्थ इन शॉर्ट, उनकी आई कलर एट बर्थ होता है ब्लू आइज. दे हैव ब्लू आइज ड्यूरिंग बर्थ टाइम, एंड एज दे ग्रो ब्लू कलर फेड हो जाता है, लाइट हो जाता है, एंड कोट बिकम्स कंप्लीटली टैन. ओके, कोट जो है टैन कलर हो जाएगा, पिक्चर्स में बताया गया है टैन, एंड आईज दे बिकम येलो. सो बर्थ के टाइम पे डार्क ब्लू कलर और नियर अबाउट यू कैन से ब्लू कलर जैसी आईज होती हैं, वो लाइट होते होते येलो हो जाती है, एंड कोट जो है टैन कलर, इमेज में बताया गया है टैन कलर, गोल्डन लाइक कलर. द कोट कलर इज नियरली गोल्डन लाइक. Florida panthers lack ability to roar. They cannot roar, but they produce different sound. Like कैसे sounds? Whistles, chips, अलग अलग sounds, hisses, सांप की तरह hisses, growling, अलग अलग टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट दे डू नॉट रॉर. जो नॉर्मली कैट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रॉरिंग, दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस केस. दे आर मिड साइज्ड फॉर द स्पीसीज. ओके, सब स्पीसीज जो है उनकी साइज मीडियम है. बीइंग स्मॉलर देन कुगार्स फ्रॉम नॉर्दर्न climes, they are smaller than the cougars but larger than cougars from the neotropics. ये कंपैरिजन किया गया है अलग अलग रीजन से. एडल्ट फीमेल फ्लोरिडा पैंथर्स, their weight is near about 29 to 45 kg. Large males, they weigh near about 45 to 72 kg. weight और length commonly याद रखना आप. total length is 1.8 to 2.2, that is 7 to 8 feet. हमने आगे इमेज में देखा. shoulder height is 60 to 70 centimeters. Now we'll see in case of plant, जो बहुत फेमस है रफलेशिया. आपको पता होगा लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दैट इज रफलेशिया. इट इज ऑल्सो इन एंडेंजर्ड कैटेगरी. ओके, रफलेशिया जीनस क्या है? रफलेशिया, एंड स्पीसीज है एर्नोल्डी. इसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट अभी रफलेशिया जीनस में 28 स्पीसीज दैट आर ऑब्जर्व. इमेजेस है रफलेशिया कैरी एंड रफलेशिया मैग्निफिशा, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. रफलेशिया इज अ जीनस ऑफ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्लांट है कंप्लीटली, इसे हम होलो पैरासाइट बोलते हैं, कंप्लीटली पैरासिटिक है. ये अपना न्यूट्रिशन, यू कैन से इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन other creatures for its food. 20, it is genus of parasitic flowering plants. आपने पढ़ा होगा कि plants जो है they are consuming insects, other fungi as the food. So this is included in parasitic flowering plants. Approximately 28 species है. They are found in Southern Asia, Indonesia, Malay Peninsula, Borneo, Sumatra, Thailand and the Philippines. Rafflesia was found in the Indonesian rainforest. Okay, first time इसको found किया था Indonesian rainforest by Indonesian guide working for Dr. Joseph Arnold in 1818. उसके ऊपर से बाद में नेम दिया आफ्टर सर थॉमस स्टेफोर्ड रैफल्स, लीडर ऑफ द ग्रुप और लीडर ऑफ द टीम जो है उनके नाम के ऊपर से इसे रफलेशिया कहा जाता है.
It was discovered even earlier by Louis Deschamps in Java between 1791 and 1794, but his notes and illustrations were captured by the British in 1803 and were not available until 1861. Rafflesia is the official state flower. और कौन कौन से कंट्रीज में ये नेशनल फ्लावर है? इंडोनेशिया and the Sabah state in Malaysia and of Surat Thani province in Thailand. So कुछ कुछ स्टेट्स में ये ऑफिशियल स्टेट फ्लावर है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, आप इमेज में देख सकते हैं कैसे वो इंसेक्ट फ्लाइज एंड कैरियन फीडर्स आर अट्रैक्टेड टू द फोल ऑर्डर, दैट इज इसकी जो गंदी स्मेल है उससे अट्रैक्ट होके फ्लाइज और इंसेक्ट्स उसके पास आते हैं फॉर फूड, और फिर क्या होते हैं, दे आर गेटिंग कैप्चर्ड, फ्लावर में वो कैप्चर हो जाते हैं एंड फ्लावर कंज्यूम्स इट एज फूड. Rafflesia has no stems, leaves or true roots. It is hollow parasite. क्यों उसे रूट या स्टेम, क्यों रूट की जरूरत पड़ेगी या लीव्स की फूड प्रिपेयर करने की? क्योंकि वो कंप्लीटली दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो उसे लीव्स रूट्स की क्यों जरूरत पड़ेगी? इट इज अ होलो पैरासाइट ऑफ वाइन्स इन द जीनस. जीनस कौन सा है? टेट्रास्टिग्मा. Spreading its absorptive organ, the hostorium. Hostorium उसका absorptive organ है, फ्लावर के बीच में जो सेंटर पार्ट है, that is hostorium inside the tissue of vine. So उस hostorium में उसका जो है मेन absorptive organ है जिसमें वो insect और flies को कैप्चर करेगा. The only part of the plant that can be seen outside the host vine is the 5-petaled flower. प्लांट जो है उसमें एक ही आप पार्ट कॉमनली देख सकते हैं, उसके पेटल्स. उसके पास कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं है, फ्लावर है जो वही प्लांट है. ओके, ये जो फ्लावर है वही कंप्लीट प्लांट जो आप बाहर देख सकते हैं. पेटल्स उसकी 5 पेटल्स हैं, बीच में हॉस्टोरियम है, उसमें वो इंसेक्ट को कैप्चर करेगा. ओके, सो पेटल्स आर द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द बॉडी. इन सम स्पीसीज सच एज रेफ्लेशिया एर्नोल्डी, फ्लावर की लेंथ मे बी 100 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड उसका वेट कितना हो सकता है? 10 kg. एक फ्लावर ही अगर इतने वेट का है तो पूरा प्लांट होगा तो कितना हो जाएगा? स्टेम, लीव्स और ट्रू रूट्स. इवन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज रफ्लेशिया बैलिटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो स्पीसीज है, सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज जिसकी साइज सबसे स्मॉल है, रफ्लेशिया बैलिटी, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, फ्लावर डायमीटर है 12 सेंटीमीटर. द फ्लावर्स लुक एंड स्मेल लाइक रॉटिंग फ्लैश, फ्लैश जैसी स्मेल फ्लावर में से आती है. हेंस इट्स लोकल नेम्स विच ट्रांसलेट टू कॉर्प्स फ्लावर. इसे लोकली कहा जाता है कॉर्प्स फ्लावर. नेक्स्ट जो है एनिमल है बॉटल नोज डॉल्फिन. बॉटल नोज डॉल्फिन साइंटिफिकली टर्म्ड एज टर्सियोप्स. करंट पॉपुलेशन इसकी हमें पता नहीं है बिकॉज हम पूरे यू कैन से सी के ओशंस को हमने अभी पूरा ट्रैवल करके फाइंड नहीं किया कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स. इमेज में है अटलांटिक बॉटल नोज डॉल्फिन एंड पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन. बॉटल नोज डॉल्फिन्स जीनस टर्सियोप्स are the most common and well-known members of the family. इनकी फैमिली है डेल्फिनिडी एंड डेल्फिनिडी क्या है? फैमिली ऑफ डॉल्फिन्स, ओशनिक डॉल्फिन्स, दैट इज द फैमिली. उसमें जीनस टॉर्सियोप्स, दैट इज इन एंडेंजर्ड कैटेगरी. रिसेंट स्टडीज से क्या पता चला है? शो द जीनस कंटेन्स 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज उसमें जो है बॉटल नोज डॉल्फिन एंड इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन. ओके, ये 2 स्पीसीज जो है दे आर मेनली इन एंडेंजर्ड कैटेगरी. 2 स्पीसीज इस जीनस में, 2 स्पीसीज जो है बॉटल नोज डॉल्फिन में, डॉल्फिन दैट इज टोर्सियोप्स टर्केंटस एंड टोर्सियोप्स एडंकस. ओके, रिसर्च इन 2011 रिवील्ड अ थर्ड स्पीसीज आल्सो. एक्चुअली ये जो जीनस है इसमें कंप्लीट जो स्टडी हुआ था अब तक उसमें 2 स्पीसीज वेल नोन
दो स्पीसीज अब तक, क्योंकि डॉल्फिन्स के केस में कितना उसका नंबर है दैट इज नॉट नोन, हाउ मच एग्जैक्ट जीनस एंड स्पीसीज दैट इज एग्जैक्टली नॉट नोन। तो अब तक दो स्पीसीज जो है डिस्कवर की गई थी, दो स्पीसीज कौन सी, टर्केंटस, टॉर्सियोप्स टर्केंटस एंड टॉर्सियोप्स एडंकस। एंड ये दो स्पीसीज दे वर इंक्लूडेड इन एंडेंजर्ड वन, बट 2011 में थर्ड स्पीसीज भी स्टडी किया गया सेम फैमिली में, that is Brunan dolphin or Tursiops australis. That was the third species. Bottlenose dolphins inhabit warm and temperate seas worldwide, particularly warm and temperate water में ये survive करते हैं। They live in groups, very important। Dolphins की characteristic है कि वो always groups में देखने को मिलेंगे, typically in 10 to 30 members। एक साथ 10 to 30 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, कॉल्ड पॉड्स। इनके ग्रुप्स को कहते हैं पॉड्स। ग्रुप की साइज नंबर यू कैन से डिफरेंट हो सकती है, फ्रॉम सिंगल टू मोर देन 1000। सिंगल होगा तो डेफिनेटली हम उसे ग्रुप नहीं कहेंगे, बट समटाइम्स सिंगल इज ऑब्जर्व मतलब वो भूल से अलग हो जाता है अपने ग्रुप से, बट मोस्टली दे आर इन ग्रुप। 10 to 1000 उसके नंबर्स हैं, डेटा में सिंगल मेंशन किया गया है बट नंबर इज 10 to 1000। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉटल नोज डॉल्फिन इमेज में बताया गया है। ओके, साइज, लेंथ एंड हैबिटेट वो हमें याद रखना है। क्रिएचर्स फीचर्स मेंशन किए ना, स्पीसीज टर्सियोप्स ट्रंकेटस, साइज उसकी, लेंथ कितनी है, अप टू 12 फीट, वेट उसका 1000 lbs तक हो सकता है। हैबिटेट, नॉर्मली दिस एनिमल इज फाउंड नियर द कोस्ट इन वार्म वाटर्स। प्रे क्या है उसका, फूड क्या है, मोस्टली फिश एंड स्क्विड, ऑल्सो क्रस्टेशियंस एंड शेलफिश। इनकी लाइफ स्पैन नियर अबाउट 30। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रख सकते हैं। ओके, इस एनिमल को और इस सी एनिमल को हम बोलेंगे दे आर द स्मार्टेस्ट सी एनिमल्स। ओके, बॉटल नोज डॉल्फिन मे बी द स्मार्टेस्ट, इसकी इंटेलिजेंस, इसे इंटेलिजेंट फिश भी कहा जाता है, may be the smartest and friendliest animal in the sea. Okay, they are swift predators. They help people out of sticky situations, even guarding from them from shark attacks. Okay, they are the friendliest animal for the humans. बहुत बार अगर शार्क नजदीक में है, they are helping the people to you can say they are helping the people to come out safely from the attack of shark. When hunting, dolphins work as team. इनकी कैरेक्टरिस्टिक है हमेशा अटैक प्रीडेटर पे, और हंट करेंगे तो ग्रुप में, टीम में। ऐसा नहीं कि एक को फूड मिला और उसने खा लिया। दे वर्क इन टीम ड्यूरिंग हंटिंग। Dolphins are the only aquatic mammals known to use tools in the wild and pass on the knowledge to their young. इसे इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये टूल्स कुछ यूज करते, कुछ इनके पास ऐसी टेक्निक्स है जो दूसरे सी एनिमल्स के पास नहीं है, एंड दे पास दिस टेक्निक्स टू देयर यंग वंस। इसलिए सी एनिमल्स में सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल जो है दे आर डॉल्फिन। फेस कैरेक्टरिस्टिक में कहा गया स्माइली फेस है। ओके, it has a permanent smile on its face, but when it opens its jaws it reveals up to 100 sharp teeth. Okay, sound it out. Dolphin finds prey with sound. Sound की मदद से टूल्स मेंशन किया गया ना कि अटैक कैसे करता है, तो एक पर्टिकुलर साउंड जो है उसकी वजह से ये प्रे को पहचान लेता है। सेम वे बैट्स डू, बैट्स आल्सो डू द सेम, यूज द सेम टेक्निक। Aquatic animal sends out a series of clicking sound from air sacs in its forehead. Sound waves that bounce off prey sound different to the dolphin. Okay, that means उसका जो prey होगा, उसका food होगा, वो अपने head से कुछ कुछ वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन रिलीज करता है, और डॉल्फिन के पास ऐसी सेंसर मैकेनिज्म है कि वो साउंड वाइब्रेशन को फास्ट कैप्चर करके अपने प्रे तक पहुंच के अटैक कर सकता है। सो दैट आर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्टिंग एनिमल डॉल्फिन्स। ये कैरेक्टरिस्टिक आगे हमने डिस्कस कर ली है। डॉल्फिन्स दे डाइट मेनली फिशेस, वर्क एज अ टीम टू हार्वेस्ट फिश स्कूल। फिश स्कूल मींस बहुत सारे फिशेस जो हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए टीम में अटैक करते हैं। कुछ कुछ इंडिविजुअली अटैक करते हैं बट नॉर्मली दे अटैक इन टीम। डॉल्फिन्स सर्च फॉर प्रे
प्राइमरीली यूजिंग इकोलोकेशन। हमने जो बात किया कि सी एनिमल्स के हेड से कुछ जो साउंड वेव्स निकलती है उसे यूज करके उसकी तरफ ये मूव करते हैं, उसे बोलते हैं इकोलोकेशन, विच इज सिमिलर टू द सोनार। दे एमिट क्लिकिंग साउंड्स एंड लिसन फॉर द रिटर्न इकोज टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड शेप ऑफ नियर बाई आइटम। वो जो सी एनिमल है उसके हेड से साउंड वेव्स जनरेट हो रही है, वो सिग्नल्स दे रहा है। वो सिग्नल्स रिसीव करके डॉल्फिन्स भी कुछ टाइप के सिग्नल सेंड करते हैं अपने प्रे की तरफ, और जब वो रिटर्न होता है तो उस वो रिटर्न होगा साउंड, दे अकॉर्डिंगली विल डिटरमाइन कि उसके फूड और उसके प्रे का शेप कैसा है, लोकेशन कैसा है। सो प्रे में से कुछ सिग्नल आ रही है, उसके अकॉर्डिंग डॉल्फिन अपना सिग्नल भेजेगा और फिर वो सिग्नल्स डॉल्फिन के पास रिटर्न होंगे एंड इट विल डिटरमाइन इट्स शेप एंड लोकेशन ऑफ द प्रे, इवन पोटेंशियल ऑफ द प्रे, कि प्रे मुझसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, मुझसे ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, अकॉर्डिंगली तो वो अटैक करने जाएंगे। डॉल्फिन्स ऑल्सो यूज साउंड फॉर कम्युनिकेशन। वो बात करने के लिए कौन कौन से साउंड यूज करते हैं? स्क्वीक्स एंड विसल्स एमिटेड फ्रॉम द ब्लो हॉल एंड साउंड्स एमिटेड थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के साउंड से भी वो कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज ये ग्रुप में अटैक करते हैं, तो एक दूसरे से ग्रुप में अटैक करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। सो अलग अलग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इनके पास है, लाइक लीपिंग फ्रॉम द वाटर, स्लैपिंग देयर टेल्स ऑन वाटर सरफेस। ये सारे लैंग्वेज हैं उनकी, कि कहाँ पे प्रे है, किस तरीके से अटैक करना है, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज द बर्ड ट्यूकान। Scientific name Ramphestidae. Current population 3,700. Okay. Toucans are members of family Ramphestidae of near passerine birds from the Neotropics, and this family is closely related to the American barbets. Family has 5 genera and 40 different species. Name of this bird is derived from Tupi word tucana, given by the Portuguese. The family includes toucans, aracaris, and toucanets. It is different from the relatives of this family, that is barbets and woodpeckers. ये सब एक ही फैमिली में आते हैं। इन शॉर्ट इसकी जो फैमिली है उसमें इंक्लूडेड कौन कौन से हैं? ट्यूकान्स, एराकेरिस एंड ट्यूकानेट्स। ये सारी एक ही फैमिली में है, और इसी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं बार्बेट्स एंड वुडपेकर्स। Toucans are found in South and Central America in the canopy layer of the rainforest में, canopy that is dense जो trees है वहां पे normally found होते हैं dense forest regions में। ये इसके कुछ characteristics हैं, features हैं। species कौन सी है? Ramphastos tocco, size है up to, that is length up to 26.5 inches, okay, weight up to different yes, wings up to 19 inches and weight is 10 oz. Habitat, इसके habitat क्या है? Open woodlands in eastern South America. Food, that is mostly they are using fruits and seeds and some egg insects and spiders. Again that is carnivorous as well as herbivorous. Lifespan इसके है 20 years. Cutting edge. Okay, Tocco toucan looks like it might want to eat your fruit loops. उसका माउथ पार्ट ऐसा है कि ऐसा लगेगा कि फ्रूट के आखे आखे बंच को खा जाएगा, बट दिस बर्ड फीस्ट ओनली ऑन रियल फ्रूट्स प्लस स्प्रिंकलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। रियल फ्रूट्स और इंसेक्ट्स को ही वो अपने फूड में कंसीडर करते हैं। इवन लिजर्ड्स को एज अ फूड इट कैन कंज्यूम। In South American forest, toucan uses its long bill with a jagged edge to grab fruit from the top of the trees. उसका जो you can say peak का shape है, उसके accordingly वो large fruits जो top पे होंगे उसे भी as a food it can consume. Yes, hunting time के अलावा ये birds जो है group में क्या करते हैं? Play time, and even they groom each other to keep their feathers clean. Characteristics: toucans range in size from the lettered aracari at 130 gram and 29 centimeter. In short उसकी साइज किसके किसके बीच में आती है? ये जो aracari है, aracari फैमिली यू कैन से मेंबर इनकी फैमिली का,
और टोकोट्यूकान, इन दोनों के बीच में इसका साइज शेप आता है, साइज एंड वेट आता है। मेंशन किया है वेट 130 ग्राम, हाइट 29 सेंटीमीटर, एंड टोकोट्यूकान इज 680 ग्राम एंड 63 सेंटीमीटर। दैट इज इसका रेंज कितना आएगा, वेट होगा 130 ग्राम से 680 ग्राम और हाइट 29 टू 63 सेंटीमीटर। Legs of the toucan are strong and short, colorful and large bill, which in some large species measures more than half length of the body. इसका जो बिल है, जो पीक पोर्शन है, कई बार कुछ स्पीसीज में उसकी बॉडी से हाफ, दैट इज 50% बॉडी जो है पीक और बिल कैन ऑक्यूपाई, और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है। टुकान्स टंग जो है लॉन्ग होती है, नैरो, ग्रे एंड सिंगुलरली फ्रीड ऑन ईच साइड, adding to its sensitivity as an organ of taste. Okay, it's very sensitive tongue. Toucans are arboreal, that is land living animal, and typically they lay 2 to 4 white eggs in their nest. Now there is a term vulnerable animal. Vulnerable animal हम उसे बोलेंगे जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि चांसेस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकता है इन द नियर फ्यूचर, अगर उसे कंजर्व नहीं किया गया। Okay, so vulnerable animals are the species whose population has declined to levels from where it is likely to move into endangered category in the near future if negative factors continue to operate. अगर उसे conditions negative ही मिलती रही तो वो endangered category में जा सकता है। Okay, these are the terms which are used by biologists. ये biological term है, हमने अपने घर से नहीं बनाया vulnerable term, who study these animals and are familiar with their needs and numbers. Examples हैं African elephant, then Gangetic dolphin and hornbill. These are the examples of vulnerable animal. Now, why we need to conserve